Hello guys, welcome back to Convert IES. Welcome back to this video series where we are rapidly revising your polity for your upcoming prelims, that is 2026. We are discussing a very important topic, that is fundamental rights, and we are doing it from our thematic notes of Convert IES. We had finished until Article 18 in the previous session. So let us continue with Article 19 in this particular video. Alright. So we'll be completing almost all the fundamental rights in this video itself. So watch it till the end so that you will have a very good edge in the upcoming prelims examination. So the articles from 19 to 22, these come under the right to freedom wale segment mein. Alright. Whatever we saw until now, that was right to equality. And these rights which are coming from 19, they are called right to freedom wale things. Okay. So in Article 19, we are getting 6 fundamental freedoms. All right. This is for citizens only. Okay. Foreigners ke liye, this is not available. So there are 6 fundamental freedoms given to citizens in Article 19. Let us go through them one by one. That is first being the speech and expression. Second is to peacefully assemble. Third, to form associations, unions, or cooperative societies. Fourth, to move freely throughout India. Mind you, it is just throughout India and not outside India. All right. Fifth is reside and settle in any part of our country, and to practice any profession, trade, or business in our country. All right. So these are six broad freedoms which have been given to us under Article 19. So let us deal with them one by one. स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या आ जाता है कि प्रोपोगेट वंस व्यूज है ना, टू फ्रॉम अ प्रेस, कि आपका प्रिंटिंग प्रेस अगर आपको लॉन्च करना है तो फिर वो भी आप कर सकते हो. दीज आर पॉजिटिव राइट्स इन दिस. अभी इसके अगेंस्ट नेगेटिव राइट्स, स्टेट के अगेंस्ट नेगेटिव राइट्स भी इसमें मेंशन है, जैसे कि अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन, अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. अगर कोई बंद कॉल करती है तो यू हैव अ फ्रीडम टू नॉट टू पार्टिसिपेट इन दिस, है ना. And freedom of silence. This is very handy for most of the accused and everything under investigation and everything. Each and every one of you will have freedom of silence to remain silent, है ना. राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, कि अगर प्रिंट ही नहीं हुआ और ड्राफ्ट ही नहीं हुआ फिर भी आपके ऊपर जो है आपके न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप लग गया, दैट इज नॉट परमिसेबल इन इंडिया. नेक्स्ट, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग है, मगर राइट टू स्ट्राइक जो है इंडिया में, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ऑलराइट. As we discussed in the previous session as well, fundamental rights में ही what are the exceptions they have given in the constitution itself. So freedom की क्या क्या restrictions हैं that are mentioned in constitution. For example, अभी speech and expression के what are the restrictions, what can be possible even if you are applying your common sense. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के अलग अलग exceptions हैं. ठीक है, तो फिर इवन इफ यू आर अप्लाइंग योर कॉमन सेंस, यू कैन डिड्यूस कि भाई ये चीज उस फ्रीडम के लिए रिस्ट्रिक्शन हो सकती है नहीं हो सकती. स्पीच एंड एक्सप्रेशन को माइंड में रखते हुए यू सी वॉट एवर यू से माइट बी हिंड्रेंस टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अगर आपने कुछ कम्युनल टाइप का कुछ बोल दिया तो फिर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया विल बी एट स्टेक, है ना. तो फिर ऐसा कुछ डिड्यूस करके करके यू कैन एनालाइज इफ दैट फ्रीडम हैज दिस रेस्ट्रिक्शन और नॉट. ठीक है, to enlist all of them, sovereignty and integrity of India is a restriction. Security of state के against जो है we can state can impose a restriction. Friendly relations with foreign states, public order, decency and morality, contempt of court, and defamation and incitement to an offense. ठीक है, तो इन parameters के ऊपर there can be restrictions imposed on freedom of speech and expression. All right, moving ahead. कहीं से बहुत महंगे वाले सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए थे. अनलिमिटेड प्रोग्राम होता है आंसर राइटिंग का, मैंने वो सब्सक्राइब किया एंड आई एग्जॉस्टिवली यूटिलाइज दैट रिसोर्स. सर एक प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट आईएएस, जो उनके चेक होके रिव्यूज आते थे, मैं उनको बड़ी सीरियसली देखती थी. Convert IS, the timely and quality checking of Convert IS. एक साइट आती है कन्वर्ट आईएएस करके. Convert IS, I would recommend anyone to use this platform. मैंने 2 मेंस लिखे हैं, दोनों में ही मैंने कन्वर्ट आईएएस का इवैल्यूएशन ज्वाइन किया था. कन्वर्ट आईएएस को काफी रेगुलरली फॉलो किया था और काफी अच्छा फीडबैक उसमें, उससे काफी हेल्प हुई और काफी प्रॉम्प्ट रिप्लाई रिस्पॉन्स आया था. 24 आवर्स में मुझे चेकिंग मिल जाती थी. थैंक यू टीम कन्वर्ट आईएएस. मैंने दोबारा कन्वर्ट आईएएस में ही एनरोल किया था क्योंकि मैंने क्वालिटी मैंने पर्सनली देख रही थी कि टेस्ट सीरीज वर्सेस कन्वर्ट वाला. Convert IS really helped me with, right? Because I was writing answers on a regular
database and getting them evaluated in the field? My GS score jumped from 384 marks in my previous attempt to 420 marks in this attempt. One of the most important reasons for me to improve on this was Convert IAS. I was a part of Convert IAS GS evaluation program. They helped me identify my mistakes and align my preparation with the demand of UPSC. So I thank Convert IAS for that. Here I would like to express my heartfelt gratitude to the Convert IS team. Quick evaluation as well as providing an affordable form of program has definitely helped in following my answer writing skills. After I was not able to clear my mains, I decided to enroll myself in Convert IS, really credible evaluators. पीसफुल असेंबली में आप क्या क्या कर सकते हैं? टू होल्ड मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेशंस आप कर सकते हैं, है ना? स्ट्राइक अगेन इट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया. कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड, नॉट ऑन प्राइवेट. आप जाके किसी कंपनी वगैरह में जाके यू कैन नॉट होल्ड योर डेमोन्स्ट्रेशंस देयर. असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड. इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक. ठीक है. रेस्ट्रिक्शंस इसमें अगेन सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आ जाएगी, पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा एंड 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी अभी जो है ये बीएनएसएस में आ चुके हैं. ठीक है. तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या है? मैजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन असेंबली मीटिंग और प्रोसेशन इफ देयर इज रिस्क टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. ठीक है. तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक ये है सेक्शन 141 के अंदर क्या है? असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, जिसको हम कर्फ्यू बोलते हैं, है ना? तो फिर ये दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड फॉर assembly. Third being formation of associations, unions and cooperative societies. This particular section was not present in original constitution. It was added by 97th constitutional amendment in 2011. It also added one more important DPSBs. Because you have already completed your DPSB chapter, I would be expecting you to mention what was the DPSB article in the comment section. राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है. क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि राइट टू वोट है या नहीं, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज इट अ लीगल राइट वगैरह क्वेश्चन आ चुके हैं. पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19C. ठीक है. कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज, आपके क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस और एनीथिंग जो भी है, यू कैन फॉर्म अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. कवर्स नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन. हमने देखा कि राइट टू फर्स्ट में क्या था? राइट टू साइलेंस था. सेकंड में क्या था कि राइट टू स्ट्राइक के अगेंस्ट आप जा सकते हो, है ना? यू नीड नॉट पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल स्ट्राइक. थर्ड, यू कैन नॉट बी फोर्स टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर एसोसिएशन और यूनियन. ठीक है. रेस्ट्रिक्शंस अगेन इसमें सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, पब्लिक ऑर्डर है एंड मोरालिटी, राइट टू ऑप्टेन एंड ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक even if they have declared a lockout. ठीक है. This has been stated by Supreme Court. अगर कोई ट्रेड यूनियन ने लॉकआउट यूज मतलब डिक्लेयर करके रखा है तो इट इज नॉट अ कंपल्शन कि भाई उनके सारे मांगे पूरे हो. ठीक है. तो एक बार याद रख लो, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर जो है ये दोनों में आता है, दैट इज A and B. ठीक है. मोरालिटी इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन फॉर्मिंग योर एसोसिएशंस. ठीक है. मोरालिटी याद रखना कि 19(c) में ही दिस इज प्रेजेंट. नेक्स्ट, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया का एक फ्रीडम ऑफ एक ये है फंडामेंटल राइट्स. राइट टू एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी. ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू, मतलब विद इन इंट्रा स्टेट भी है, इंटर स्टेट भी है ना? नेक्स्ट, उसके क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नॉट जस्ट शेड्यूल्ड कास्ट. शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट में लिए, टू प्रोटेक्ट डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, मैनर्स ऑफ एसटीज एंड एवरीथिंग. बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए यू नीड टू टेक अ परमिट एंड गो ऑन, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ द परमिट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना? What is Supreme Court stand on this? Freedom of movement of prostitutes can be restricted on the grounds of health and public morals. ठीक है. Because there is risk of spread of sexually transmitted diseases. तो फिर prostitutes का जो है freedom of movement can be restricted. Okay, that is held valid by Supreme Court. Next, to reside in any part of the country, है ना? To reside any part of the country or stay, which can be stay temporarily or settle. ठीक है. रिसाइड मतलब टेम्पररी स्टे होता है, सेटल मतलब परमानेंट स्टे होता है ना? ओनली वन एक्सेप्शन वाज प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर, राइट? वो 371A के बाद जो है, 370A के अबॉलिशन के बाद जो है, दैट आल्सो हैज बीन अबॉलिश्ड.
Next, sorry, yeah. Next, interest of general public के against ये restriction they can be imposed. Protection of interest of again scheduled tribes का ये जो भी यहाँ पे restrictions थे, same restrictions are there in D and E. ठीक है, मूव के लिए भी सेम है, रिसाइडिंग एंड सेटलिंग के लिए भी सेम restrictions they are present. Last form is to practice any profession or trade or business. ठीक है, to practice any profession or trade occupation or which is not illegal or immoral. इसमें एक्सेप्शंस क्या है? अगेन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. नेक्स्ट, स्टेट के कुछ कुछ पॉजिटिव राइट्स इसमें मौजूद हैं, क्योंकि मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज द स्टेट इज हैविंग मोनोपोली ओवर देम, जैसे कि आपके न्यूक्लियर पावर हो गया, रेलवेज हो गया. सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस दोज प्रोफेशंस कि मेरे को वो चीज़ करना है, क्योंकि Supreme Court has upheld that no objection can be made when state carries a trade, business or industry service either as a monopoly or exclusion of citizens or in competition with any citizen. ठीक है, जैसे कि BSNL is a competition with Airtel. Airtel जाके ये नहीं केस कर सकते कि state जो है they cannot be entering into business. ठीक है, so state can also do all these profession, trades and business without any hindrance. ठीक है, and right to property was also a part of this fundamental right, but it was abolished. It was abolished by 44th Amendment in 1978, है ना. It was deleted from Part 3 and it was added in Article 300A. ये याद रख लो, लास्ट में ये वाला आर्टिकल भी विल बी डीलिंग इन डिटेल. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 20 पे आते हैं. आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, जो भी आप वेन एवर यू आर अ कॉन्विक्ट, तो फिर उसके कॉन्विक्ट्स को क्या क्या फ्रीडम है, आर्टिकल 20 एक्सक्लूसिवली डील्स विद दैट. ठीक है, इसके अंदर जो है 3 एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो इसका मतलब क्या क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब it law applies only to it cannot be convicted, you cannot be convicted for an act which was not an offense when you did it or given a harsher penalty than the one at the force. मतलब इसका मतलब ब्रॉड मतलब यही है कि आज अगर आपने कोई एक्ट कन्विक्ट किया है, तो आज के लॉ के हिसाब से व्हाट इज द पनिशमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस विच यू हैव टू गो थ्रू, वो ही आप हो सकता है. भले ही आपका केस 7 साल चले, 10 साल चले, गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि 10 साल के बाद जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्राई किया जाएगा. राइट, आज के हिसाब से जो भी लॉज एंड प्रोसीजर्स आर देयर, यू विल बी ट्राइड ओनली अकॉर्डिंग टू दैट. Example being, Parliament cannot make a 2025 act saying कि tweeting in 2024 is a sedition and you can jail you. कि retrospectively कोई भी act हम जो है अप्लाई ना कर सकते. And this is applicable only to criminal laws. है ना, टैक्स और सिविल लाइबिलिटीज के ऊपर दिस इज नॉट applicable. Retrospectively, civil liabilities and tax liabilities can be imposed. ठीक है, next, it does not stop government from making a lighter punishment applicable. दैट मीन्स बेनिफिट, अगर आपको लेट्स से कि कोई पनिशमेंट रिड्यूस किया जाता है कि लेट्स से कि कोई कमिट क्राइम के लिए इट वाज 7 years ऑफ जेल, आगे जाके अगर वो 5 साल हो जाती है, तो फिर यू कैन बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, क्योंकि लाइटर पनिशमेंट आपको मिल सकती है. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज बारिंग ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस, नॉट मियर ट्रायल. मतलब आप अरेस्ट होके आप ट्रायल हो, मतलब आपके ऊपर ट्रायल हो सकता है, मगर अगेन लास्ट में अगर बात आती है कि भाई आपको उसके ऊपर कन्विक्ट करना है नहीं करना है, देन यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑन दैट, मगर ट्रायल जो है इट इज पॉसिबल. नेक्स्ट, डबल जेपर्डी का मतलब यही है कि भाई एक क्राइम के लिए आप एक ही बार पनिशमेंट ले सकते हो या अक्यूज हो सकते, सॉरी कन्विक्ट हो सकते हो बार बार, जो मतलब यू कैन नॉट बी हैविंग अगेन एंड अगेन सेम ट्रायल्स ऑन द सेम थिंग. ठीक है, there are two phases. It works only when the first proceeding was before a court or judicial tribunal. ठीक है, लोक अदालत वगैरह में if your case was produced, then that does not count. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट और कस्टमर कन्फिस्टिगेशन या बार सॉरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो गया आपके ऊपर, वो सब दैट डज नॉट काउंट अंडर डबल जेपर्डी. थर्ड वन बीइंग देयर इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, that is accused cannot be forced to testify against himself. वैसे भी अगर if you are whatever you say under your police investigation that cannot be produced as an evidence in your court, है ना. तो फिर this is to ensure कि जो भी judicial ये होते हैं कि भाई फोर्स करके पुलिस जो है आपको बयान बुलवाते हैं कोर्ट में, सो दैट इज दिस टू एंश्योर दैट दिस डज नॉट हैपन, दिस फ्रीडम हैज बीन गिवन. प्रोटेक्शन बिगिंस वंस अ प्रोटेस्ट इज अक्यूज्ड. ठीक है,
कवर्स ओरल टेस्टिमनी एंड रिटन स्टेटमेंट्स ओनली, ठीक है। इट डज नॉट कवर क्या क्या है आपका हैंड राइटिंग, ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, ये चीज आपको देनी पड़ती है, यू कैन नॉट डिनाई गिविंग दिस, मगर यू कैन नॉट बी फोर्स टू गिव अ टेस्टिमनी अगेंस्ट योरसेल्फ, इवन इफ यू आर गिविंग, दैट इज नॉट परमिसेबल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन कोर्ट, ठीक है। नाउ दिस अप्लाइज टू सिटीजन्स, फॉरेनर्स एंड इवन कंपनीज एज वेल, ठीक है। दिस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन इवन एज कंपनीज, क्योंकि कंपनीज के अगेंस्ट भी बहुत सारे केसेस, टैक्स फ्रॉड्स वगैरह सब कुछ फाइल होते रहते हैं ना, तो फिर दिस इज अ स्पेशल एक्ट, सॉरी फ्रीडम विच इज अवेलेबल फॉर कंपनीज एज वेल। नेक्स्ट, इट इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। प्राइवेट कोर्सन इज डेल्ट अंडर स्पेशल लॉस। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट, अगर आपके पॉश के हो गया, या इंटरनल जो भी कंपनी के अगर लॉस हो रहे हैं, तो फिर दैट इज dealt differently. It is only for the crimes or whatever the arrest which is happening against the state. This Article 20 is not available for preventive detention. ठीक है, preventive detention क्या है, we will be seeing in Article 22 in detail. Next, it is absolute. Even in the time of emergency, this particular this particular fundamental right cannot be abridged. All right. Moving ahead, a very broad fundamental right, that is Article 21. Initially it was a negative right कि भाई it was stopping government from doing these things, कि भाई hindrance नहीं ला सकते आप citizens के life में. Nowadays it is moving towards positive right, क्योंकि it is enabling most of the things which has to be having which is necessary for a citizen to live a dignified life. तो वो provision जो है इस particular article से what is it, constitution is giving to the citizen. All right, what is the text of it? No person shall be deprived his life or personal liberty except according to the procedure established by law. ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आर्बिट्रली आप जो है आप लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते सिटीजन्स के, ठीक है। अगर देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट ठीक ठाक प्रोसीजर उसका फॉलो करती है। पार्लियामेंट का प्रोसीजर क्या है कि भाई आप लेजिस्लेशन लाते हो, उसको एक्ट लाते हो, एंड इट पासेस द जुडिशियल वाला रिव्यू वाला सेक्शन ऑल्सो, देन दैट मीन्स प्रोसीजर इज प्रॉपर, मतलब सब कुछ लॉफुली डन है, तो फिर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आप ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने देख लिया पिछले साले सेक्शन में, देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स एज वेल। तो अगर गवर्नमेंट को आगे जाके कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, तो फिर जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसको ठीक ठाक फॉलो करना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन रेस्ट्रिक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मोस्ट लिटिगेटेड एंड जुडिशियली एक्सपेंडेड। आप कोई भी मतलब न्यूज़पेपर ठीक ठाक फॉलो कर रहे हो, तो फिर आर्टिकल 21 का तो बहुत सारा मेंशन आता ही है। दिस इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है। इट वाज ओरिजिनली अ नेगेटिव राइट, बट नाउ इट इज अ पॉजिटिव डायमेंशन एज आई सेड, ठीक है। इट इज नॉट सस्पेंडेबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इनिशियली जो है बस आर्टिकल 20 जो है यू कैन नॉट, इट कुडंट बी व्हाट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मगर 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद they added one more article, that is article 21, ठीक है। even during emergency you cannot suspend this particular fundamental right. so इसमें लाइफ एंड लिबर्टी जैसे हमने मेंशन किया था, what is that meaning, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू they have deduced it. what is it? लाइफ का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस, भाई जिंदा है नहीं है, जिंदगी भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। लाइफ मीन्स ह्यूमन डिग्निटी के साथ उसको वी हैव टू एनेबल दैट हिज लाइफ इज गोइंग ऑन विथ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल लिबर्टी क्या है? इट वॉज इनिशियली नैरो इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट वॉज अ नेगेटिव राइट। अभी मेनका गांधी केस, इट इज अ वेरी फेमस केस जिसके अंदर बहुत सारे राइट्स जो है दिए गए थे अंडर आर्टिकल 21। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम कम अंडर आपके पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अभी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन मतलब व्हाट डज इट प्रॉपरली मीन, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इट हैज बीन इवॉल्व्ड। फर्स्ट गोपालन केस में 1950 सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, एनी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ वाज सफिशिएंट, ठीक है। अगर कुछ पार्लियामेंट का जो भी प्रॉपर प्रोसीजर है, इफ इट वाज फॉलोड दैट वाज सफिशिएंट, है ना। फेयर हो या ना हो, दैट वाज नॉट चेक कि भाई प्रोसीजर अगर ठीक ठाक है देन इट इज डन। मगर मेनका गांधी केस अ वेरी ह्यूज लैंडमार्क केस, इसमें क्या हो गया कि भाई प्रोसीजर हैज टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक है। आपके पास इमोशंस भी होने चाहिए व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग दोस प्रोसीजर्स, देयर इज नो आर्बिट्री और इट कैन नॉट बी ऑप्रेसिव इन नेचर, है ना। एंड आर्टिकल 14, 19, 21 इट हैज टू बी इंटरलिंक, कि इक्वालिटी भी होनी चाहिए, आपका फ्रीडम शुड बी इंश्योर्ड, एंड आर्टिकल 21 तो है ही वैसे ही, ठीक है। तो फिर दिस चेंज द होल लॉ मेकिंग प्रोसीजर आफ्टर 1978. Now there are many various
rights which have been given under Article 21 because it continuously keeps on evolving. आपके environment laws हो गए, आपके personal laws हो गए, आपके cohabitual laws हो गए, सब कुछ बहुत सारे laws जो हैं इसके अंदर जो है they have been evolved. कुछ कुछ most of the time most important ones have been mentioned here. You can just go through them. ठीक है. One more important thing हमने Article 19 में देखा कि movement within the country, within India is a fundamental right under Article 19. मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री की अगर आपको अब्रॉड फॉर ट्रैवल करना है, इवन दैट इज अ फंडामेंटल राइट, बट दैट फंडामेंटल राइट इज अंडर आर्टिकल 21. ठीक है. तो दिस सेक्शन आई वुड प्रेफर कि आप थोड़ा करंट अफेयर्स के थ्रू भी, हमारे करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट भी यू कैन गो थ्रू पॉलिटी वाला सेक्शन. इट हैज बीन पोस्टेड फॉर फ्री ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. तो बहुत सारे आर्टिकल 21 रिलेटेड जो है न्यूज़ हो चुके हैं 2024-2025 में. गो थ्रू देम. ठीक है. आर्टिकल 21 के थ्रू क्या क्या और फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट सेक्शन इटसेल्फ. ठीक है. All right. So let's go to the limitations which are there under Article 21. This right is not absolute, just like other fundamental rights. अगर deprivation is valid only if there is a law, the procedure is fair and just and reasonable, law passes Article 14 and 19. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बस यही है कि if the deprivation which is being made by a procedure of law is valid, कि only when there is a law which has been made by parliament, it has been fair, just and reasonable. ये वाला टेस्ट भी वो पास हो चुका. एंड आर्टिकल 14 एंड 19 भी आपके अब्रिज नहीं हो रहे, इन्फ्रिंज नहीं हो रहे. दिस ट्रिपल टेस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर मेनका गांधी केस है ना. तो इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स आर पास्ड, देन दैट मीन्स दैट डिप्रिवेशन इज वैलिड. ठीक है. So we discussed that Article 20 and 21 it cannot be taken away even in the case of emergency, है ना. So let's move on to the next article, that is Article 22, which deals with arrest and detention. तो इसके अलावा कौन सा था हमारा Article 20 था. We mentioned that preventive detention के लिए Article 20 is not available. तो preventive detention क्या होता है कि भाई you have not committed a crime but the state feels कि you are likely to commit a crime क्योंकि आप habitual offender हो and the circumstances such कि आप कुछ crime commit कर सकते हो, तो फिर before that also the state can arrest you. That is called as preventive detention. ठीक है. तो उसके opposite क्या होता है कि punitive detention. Punitive detention मतलब you have committed a crime, उसके बाद आपका जो भी अरेस्ट होता है that is punitive detention. ठीक है. तो that is what is mentioned. Punitive detention after trial and conviction for a past offense, कि offense already हो चुका है. Preventive detention में without a trial and conviction to prevent a future act prejudicial to security or public order. ठीक है. डिफरेंसेस ब्रॉडली देख लेते हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या हो सकता है कि भाई आपको अरेस्ट करने से पहले यू हैव टू ब्रिंग पुलिस हैज टू ब्रिंग अ वारंट विच हैज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि आपको किस चीज के लिए अरेस्ट किया जा रहा है ना. यू हैव टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ योर चॉइस. ठीक है. दिस इज अ फंडामेंटल राइट अगेन अंडर आर्टिकल 21. नेक्स्ट यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ट्रैवल टाइम एक्सक्लूडेड, कि ट्रैवल जितना भी टाइम लगता है उसके अलावा 24 आवर्स के विद इन आपको मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस कर देना चाहिए. नेक्स्ट यू हैव टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स इफ द मजिस्ट्रेट से सो, कि अगर मजिस्ट्रेट मना कर देता है आपको कस्टडी तो फिर यू हैव टू बी रिलीज देन एंड देयर. मगर ऑल दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है. जैसे कि ग्राउंड्स एंड डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड एज सून एज इट मे बी. ठीक है. 24 आवर्स का टाइम लिमिट इसमें नहीं दिया गया है ना. बट डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months unless and until advisory boards which consist of high court judges finds that sufficient case is there for extension. ठीक है. तो 3 months तक जो है you can be kept under preventive detention. उसके beyond अगर जाना है तो फिर हाई कोर्ट जजेस का एक advisory board होता है, they will decide on case by case basis कि इस केस के लिए हो सकता है या नहीं कर सकता. नेक्स्ट डिटेन्यू मस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. मगर इसका टाइम लिमिट या कंपल्शन इस पे है नहीं, मगर देयर इज अ प्रोविजन कि इसको डिटेन्यू को दे हैव टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू गेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ लॉयर. नेक्स्ट पार्लियामेंट, see this, parliament may fix class of cases and maximum period and advisory board procedure for detention beyond 3 months. ठीक है. who only parliament and not the state governments can fix कि भाई किस केस के लिए कितना maximum duration of preventive detention दिया जा सकता है ना. and what are the laws which can be added deleted, वो सब चीजें जो है it is done by parliament.
आर्टिकल 22 को लागू लाने के लिए मतलब टू बी यूज देयर आर मेनी एक्ट्स हैव बीन मेड, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, मैक्सिमम डिटेंशन इसमें 12 मंथ तक आप रख सकते हो। नेक्स्ट कॉफे पोसा, अगर आप कोई थिंग स्मगलिंग या अगर फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन वगैरह कर रहे हो तो फिर 1 ईयर तक आप रखे जा सकते हो इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस स्पेशल एक्ट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इवन दिस टू दिस डे इवन आफ्टर अब्रोगेशन ऑफ 370 इट इज स्टिल प्रेवलेंट। तो 6 to 24 मंथ्स तक आप जो है आप रखे जा सकते हो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी लॉज आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन। हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास में ही देख लिया कि एनिमी एलियन कौन है और उनके लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग। दिस इज अप्लीकेबल ओनली टू क्रिमिनल और क्वाजी क्रिमिनल एंड डज नॉट फॉर सिविल और सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है। ओनली क्रिमिनल लॉस के ऊपर आर्टिकल 22 लागू है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन सेफगार्ड्स डू नॉट बार साइमल्टेनियस क्रिमिनल ट्रायल। अगर आपका ऑलरेडी कोई क्रिमिनल केस चल रहा है ना, प्यूनिटिव केस चल रहा है, तो फिर वो भी पैरेलली आपका चलते रहना चाहिए, मतलब देयर इज नो बार ऑन दैट, बट यू कैन बी ऑल्सो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी आप अरेस्ट हो सकते हो, दोनों प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव दोनों के अंदर आप अरेस्ट हो सकते हो एट सेम टाइम। नेक्स्ट, पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली कैन मेक द लॉस रिगार्डिंग दिस व्हाटएवर है ना, ये ऑन द डिफेंस फॉरेन अफेयर्स सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर ओनली पार्लियामेंट कैन मेक प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ। और अदर कि भाई जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड ऑर्डर सप्लाईज, एसेंशियल सर्विस, इसके ऊपर जो है पार्लियामेंट एंड स्टेट्स दे बोथ कैन मेक लॉस कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉस दी स्टेट्स एंड पार्लियामेंट दे बोथ कैन मेक ऑन दिस, ठीक है। आई जस्ट हैव टू रिमाइंड यू, यहाँ पे हमने पार्लियामेंट का ये मेंशन किया था कि भाई एडवाइजरी बोर्ड का प्रोसीजर, डिटेंशन बियॉन्ड 3 months, ये वगैरह सब कुछ जो है ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। लॉस, प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विस के ऊपर पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट एक्सक्लूसिविटी किसके ऊपर है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 23 के ऊपर आते हैं, विच प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो अगेंस्ट क्या क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स है, बेगर है एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर फॉरबिडन, एंड स्टेट में इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सोनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, सॉरी कास्ट और क्लास। इसमें सेक्स के ऊपर जो है यू कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। नेक्स्ट, इट अप्लाइज टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स बोथ एंड इट बाइंड्स बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन्स। एक और जो प्राइवेट पर्सन्स के ऊपर फंडामेंटल राइट था अगेंस्ट था कि वो है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला, एंड द सेकेंड वन बीइंग आर्टिकल 23, है ना। तो फिर नो वन कैन फोर्स यू टू बी हिज और हर वर्कर, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप उसको रेम्यूनरेशन वो ठीक ठाक मिल जा रहा है एक्सेट्रा, तो फिर दैट कैन बी, इफ इट इज नॉट सॉरी रेम्यूनरेशन या वर्किंग कंडीशन अगर इफ इट इज नॉट प्रॉपर, इवन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। व्हाट इज द टर्म्स विच हैव बीन प्रोहिबिटेड? उसमें बाइंग एंड सेलिंग, हायरिंग, ट्रांसपोर्टिंग पर्सन्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी, ये सब चीज जो है इट इज ब्लैंकेट बैन है इन सब चीजों के ऊपर आर्टिकल 23 के अंडर। बेगर का मतलब क्या है? वी हैव रिपीटेडली सीइंग दैट कंपल्सरी वर्क विदाउट एनी पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बेगर बोलते हैं, राइट। Forced labor definition has been given, that is compelling a person to work against will, includes economic compulsion कि working less than statutory minimum wage, that is also called as forced labor, ठीक है। all these definitions are not mentioned in constitution मगर interpretations है सारे, ठीक है। एक्सेप्शंस जो भी आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में लिखा है कि भाई कंपलसरी पब्लिक सर्विस की डिफेंस में आपको अगर वॉर छिड़ गया तो फिर गवर्नमेंट कैन से कि डिफेंस में पार्टिसिपेट करना इज कंपलसरी, मगर गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकते कि दिस वी हैव चूजिंग पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोग ओनली या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दे कैन नॉट एंटर, सो डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी मेड ऑन दिस, इट हैज टू बी कॉमन फॉर ऑल, है ना। एंड ऑल्सो विथ नॉमिनल रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन के साथ ही स्टेट जो है इट कैन इम्पोज अ कंपल्सरी सर्विस। तो कुछ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आल्सो आर देयर फॉर आर्टिकल 23 कि जैसे कि हमने बोला कि फोर्स्ड लेबर सॉरी पेइंग लेबरर्स बिलो मिनिमम वेज इज आल्सो कंसिडर्ड एज फोर्स्ड लेबर, ठीक है। एंड ऑल्सो
These are few other cases which you can be using in your mains answers, मगर prelims point of view से these are all common sense वाले things you can automatically deduce कि ये सब जो है forced labor के अंदर automatically आते हैं, ठीक है. Liability of this under Article 23 is criminal. Other criminal liability was under Article 17, है ना. Parliament is free to prescribe any penalties. Again see, हम इस चीज को बार बार हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब दिस अलोन इज एन फंडामेंटल राइट अगेन फॉर पार्लियामेंट, जिसके अंदर ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज अकॉर्डिंग टू फॉर दिस आर्टिकल 17 हो गया, आपके 23 हो गया, 16 हो गया, तो इसके ऊपर ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉस, है ना. नेक्स्ट आर्टिकल 24 के ऊपर आते हैं, विच इज फॉर चाइल्ड लेबर, विच इज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. तो चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है इसमें, इट इज एज ऑफ 14, क्योंकि वेरियस एक्ट्स के अकॉर्डिंग देयर आर द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इट वेरीज. फॉर एग्जांपल आपके पॉक्सको एक्ट के लिए द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डिफरेंट, आपके जुवेनाइल जस्टिस के लिए एक्ट के लिए द एज ऑफ चिल्ड्रन इज डिफरेंट. आर्टिकल 24 के अंदर द एज ऑफ चिल्ड्रन इज डिफरेंट, है ना. तो फिर इन द कमेंट सेक्शन आई वांट यू टू रिसर्च व्हाट आर द एजेस, व्हाट इज द कट ऑफ एज जिसके अंदर हम चाइल्ड को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दीज वेरियस एक्ट्स, ठीक है. तो आर्टिकल 24 के अंदर it is 14 years of age. Both citizens and foreigners, they are absolutely banned in factories, mines and explosive and other hazardous process. अगर 14 माइनस है तो वो, इफ दे आर वर्किंग इन अ फैमिली बेस्ड नॉन हजार्डस वर्क दैट इज परमिसेबल, कि अगर आपका फैमिली ओन बिजनेस है, रेस्टोरेंट आप चला रहे हो तो फिर वगैरह शॉप चला रहे हो, उसमें बिठा दिया बच्चे को, ये सब इट इज परमिसेबल. तो इट हैज एवॉल्व, मतलब थ्रू टाइम इसको एवॉल्व किया गया है ना. तो पहले 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, इट प्रोहिबिटेड स्पेसिफाइड डेंजरस ऑक्यूपेशन, रेगुलेटेड आवर्स एंड एवरीथिंग, वो सब किया गया था. 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नोटिफिकेशन फॉर हजार्डस, ये जो भी है कि पटाखे की फैक्ट्री होगी, आपकी जो भी मतलब एक्सप्लोजिव्स वगैरह, लिस्ट टू होटल्स एंड ढाबास एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट 1996 का एक चाइल्ड लेबर 2016 एक्ट विच इज द मोस्ट रिसेंट वन. टोटल बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 14 माइनस, कि भाई कोई भी प्रोसेस फैक्ट्रीज या कुछ भी हो जाए उसमें बैन है, एक्सेप्ट फॉर फैमिली एंटरप्राइज आफ्टर स्कूल आवर्स आपके, प्लस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विद सेफ गार्ड्स, है ना. बहुत सारे मतलब डांसिंग सिंगिंग वगैरह में आप कर सकते हो, बट विथ सेफ गार्ड्स. प्रोहिबिट्स अडोलेसेंस, दैट इज अडोलेसेंट का डेफिनेशन है कि 14 to 18 इन डेजिग्नेटेड हजार्डस प्लेसेस, ठीक है. 14 माइनस इज कंप्लीटली बैन. 14 to 18 कुछ जो भी है वेरी हजार्डस प्लेसेस सच एज योर माइनिंग एक्सप्लोजिव्स वगैरह, तो फिर 14 to 18 के लिए दैट आल्सो एक्सटेंड्स फॉर दीज प्लेसेस एज वेल. 14 माइनस ओनली नहीं है, 14 to 18 के लिए भी देयर इज प्रोविजन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑफ 2016, ठीक है. इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू ILO कन्वेंशन 182 दैट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है. याद रखना क्योंकि वुमेन का सिग्नेटरी हम है नहीं, ठीक है. इस्तांबुल कन्वेंशन का वी आर नॉट अ सिग्नेटरी. नेक्स्ट उसका ऑफेंसेस के लिए ऑल्सो इज डिफाइंड कि 50,000 फाइन होता है, 6 months का जेल, 6 to 2 years का जेल होता है ना. एंड ऑल्सो की एक और चीज, इफ यू आर रिपीटिंग दैट ऑफेंस, ठीक है, तो फिर दैट मीन्स 1 to 3 years एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये. ऑलराइट, moving ahead, let's discuss all the fundamental rights associated with freedom of religion now, right. Article 25 से आपका 28 तक जो है, 25, 26, 27, 28, all these 4 articles जो हैं, these deal with freedom of your religion. Okay, first one article 25, उसका बेयर एक्ट क्या बोलता है, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion subject to पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है. बेसिकली क्या देता है, 4 फ्रीडम्स देता है आर्टिकल 25, राइट. नो व्हाट डज दीज 4 टर्म्स मीन्स. कंसाइंस, कि आपको इनर फ्रीडम टू होल्ड एनी बिलीफ, कि आपको मतलब जो भी रिलीजन आपको खुद से फॉलो करना है, यू आर फ्री टू फॉलो दैट, राइट. एनी एस्टैब्लिश्ड रिलीजन और रिलीजन ऑफ योर ओन. चूजिंग टू बी एथिस्ट इज ऑल्सो comes under this right to conscience itself, right. Next,
प्रोफेस का मतलब है कि भाई यू कैन डिक्लेयर योर फेथ, कि आप हिंदू हो, यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, यू कैन डिक्लेयर दिस, देर इज फ्रीडम फॉर दैट एज वेल, राइट। उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो, वेयरिंग अ क्रूफिक्स हो गया या टीका लगाना वगैरह, सो सब कुछ जो है राइट टू प्रोफेस में आता है। राइट टू प्रैक्टिस मतलब वट एवर द एसोसिएटेड वर्शिप्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, सेरेमनीज है, यू वांट टू सेलिब्रेट, यू आर फ्री टू सेलिब्रेट दैट एज वेल, कि क्रिसमस, ईद, दिवाली वगैरह जो भी आप सेलिब्रेट करते हो फेस्टिवल्स, दैट कम्स अंडर प्रैक्टिस। प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि भाई एक्सप्लेन एंड स्प्रेड वंस रिलीजन टू अदर्स, है ना। दैट मीन्स अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि रोड के पास इस्कॉन वाले लोग जो है भगवत गीता बांटते रहते हैं ना, तो फिर यू कैन स्प्रेड द व्हाट यू से नॉलेज और whatever the message your religion has to others as well, है ना। तो फिर all these four rights are present under article 25 to each and every individual। अभी there are few restrictions to this, exceptions की भाई public order, morality, health and other provisions of this part के according state can impose restrictions on this fundamental right, है ना। तो फिर इसमें एक और सब क्लॉज 2 है which is very important, that is state can authorize, sorry, what is the constitution has authorized the state to regulate secular activities and enact social welfare or reform laws including throwing open Hindu temples to all sections। इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस मैटर में फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, क्या क्या चीज़ों में, कि रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज। सेक्युलर एक्टिविटीज के सारे आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो गए, स्टेट कैन इंटरवीन टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एवरीवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, टेम्पल प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस बनाना हो गए, वक्फ फंड के ऑडिट के ऊपर जो भी अगर आपको लॉस बनाना है, तो फिर स्टेट कैन इंटरवीन सो दैट देर इज यू कैन इंश्योर कि देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और वट एवर हाउ एवर द फंड्स हैव टू बी यूज्ड, उस तरह से फंड्स यूज हो रहे हैं, तो स्टेट कैन इंटरवीन एंड इंश्योर दैट। नेक्स्ट चीज क्या है कि मेक लॉस फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि रिलीजन में ही सब कुछ बने हुए हैं, तो फिर इसीलिए स्टेट कैन इंटरवीन एंड मेक लॉज ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, दिस इज एनेक्टेड बाय स्टेट, राइट, बेस्ड अपॉन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फॉर श्योर, मगर स्टेट को एनेक्ट करना पड़ा सो दैट देर इज यूनिफॉर्मिटी अमंगस्ट ऑल द रिलीजन, मतलब सेम उस रिलीजन के सारे लोगों के पास देर इज यूनिफॉर्मिटी, है ना। देर इज नो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टेट्स, तो गोवा हो गया आपका, हरियाणा में अभी बिल पास हो गई, है ना। तो उसके अलावा सेंट्रल में देर इज नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसके अगेंस्ट जो भी रिलीजन्स के अलग अलग कोड्स हैं या रिलीजियस लॉज हैं, तो फिर दैट हैज़ बीन कोडिफाइड सेपरेटली, है ना। उसके अलावा एंट्री ऑफ ऑल कास्ट टू टेम्पल्स, तो दैट हैज़ बीन इंश्योर्ड इन मद्रास टेम्पल एंट्री एक्ट वगैरह सब कुछ, बहुत सारे एक्ट्स के थ्रू। और वट एवर द हिस्टोरिकल इंजस्टिस वॉज डन टू अनटचेबल्स हो गए, लोअर कास्ट हो गए, तो फिर उसको रिवर्स करने के लिए स्टेट हैज़ टेकन मेनी प्रोएक्टिव स्टेप्स। ये थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई ओपन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, जो भी पब्लिक प्लेसेस के पब्लिक टेम्पल्स हैं, तो फिर दोज हैव टू बी ओपन टू ऑल हिंदूज, ठीक है। तो फिर दिस इज टू अगेन अनडू द हिस्टोरिकल अनजस्टिस, जैसे मैंने बताया, एंड सो टू एंश्योर कि भाई कास्टिज्म ना हो, अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू ना हो, तो फिर स्टेट हैज टू एंश्योर दैट ऑल द पब्लिक कैरेक्टर वाले हिंदू टेम्पल्स जो हैं, दोज आर ओपन टू ऑल हिंदूज। इस हिंदू डेफिनेशन में क्या क्या लोग आ जाते हैं, सिख्स आ जाते हैं, जैन्स आ जाते हैं, आपके बुद्धिस्ट आ जाते हैं, ऑल दिस पीपल आर इंक्लूडेड इन द सेम डेफिनेशन इटसेल्फ। अभी there is one more important thing which you have to learn in this article 25, that is essential religious practice। ये किस चीज के लिए है, ये थर्ड थिंग के लिए, प्रैक्टिस, कि आपको राइट दिया है कि आप वर्शिप कर सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो, सेरेमनीज कर सकते हो, है ना। तो रिचुअल या सेरेमनीज के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू हैव टू एंश्योर कि ये सब चीजें ये इंश्योर करने चाहिए दूसरे सिटीजन्स के भी, है ना। तो फिर स्टेट डिसाइड्स कि आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं, मतलब एसेंशियल, इसके बिना आपका रिलीजन जो है इट इज नल एंड वॉइड, वो क्या क्या चीजें हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय योर सुप्रीम कोर्ट। एक फेमस केस है शिरूर मठ केस, ठीक है, ऑफ 1954। तो फिर उसमें कोर्ट ने बताया कि भाई आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कि कोई इंसान की बलि चढ़ा दी कल के, कि बोलते हो कि भाई दिस इज आवर पार्ट ऑफ आवर रिलीजन प्रैक्टिस, तो फिर ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं एसेंशियली, तो फिर उसको डिसाइड करने का जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट का है ना। द एग्जाम्पल विच आई वाज एक बिट एक्सट्रीम, अगर आपको ठीक ठाक समझ नहीं है तो फिर बियर्ड छोड़ना, दैट इज कीपिंग अ बियर्ड,
इट इज़ अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर सिक्स ओनली, ठीक है, उनके रिलीजन में ये है कि यू कैन नॉट कट योर हेयर्स ना, तो दैट्स वाई दैट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर वो नहीं फॉलो करते तो फिर देयर रिलीजन बिकम्स नल एंड वॉइड। बट फॉर द सेम थिंग मुस्लिम्स कीपिंग अ बियर्ड, इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि कीपिंग अ बियर्ड इज नॉट कंपलसरी फॉर मुस्लिम्स, वो अपने मतलब कस्टमरी ट्रेडिशन के हिसाब से आप वो कीप करते हैं। तो फिर देर वॉज अ केस कि जिसमें पुलिस ऑफिसर वॉज आस्क्ड टू शेव his beard, but he told that he is a Muslim and he wants to keep his beard. तो फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि भाई इस्लाम में जो है देर इज नो कंपल्शन टू कीप अ बियर्ड, तो फिर यू हैव टू शेव योर बियर्ड, राइट। तो फिर ये सारे चीजें जैसे हैं, तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन केस बाय केस बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज आप याद रख लो, दिस बिकॉज दिस इज मच मोर वेरी मच इन न्यूज। प्रोपोगेट मतलब अपना फेथ के जो भी नॉलेज है आपके, मतलब वॉट एवर टीचिंग्स आर देयर, यू कैन प्रोपोगेट टू अदर्स, बट इट डज नॉट गिव यू द राइट टू कन्वर्जन, ठीक है। तो कंपल्शन या इम्पोजिशन नहीं डाल सकते टू एनी अदर पीपल टू गेट इन टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन, है ना। नेक्स्ट कुछ चीजें याद रख लो इसमें। प्रोटेक्शन इज प्राइमरली वर्टिकल, दैट मीन्स स्टेट के लिए अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट है, मगर हॉरिजॉन्टली भी जो है इट इज अप्लीकेबल, कि जैसे टेंपल ट्रस्ट में वगैरह हम देख लिया कि भाई यू हैव टू ओपन योर टेंपल्स फॉर ऑल द व्हाट इज से पीपल्स ऑफ हिंदूज, तो फिर हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला टेस्ट भी यू हैव टू पास, जो भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर दैट हैज टू पास की दैट इज एसेंशियल टू योर रिलीजन। स्टेट कैन इंटरवीन टू और रिफॉर्म इवन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, देयर इज कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 25। नेक्स्ट रिलीजियस प्रोपोगेशन बाय फॉरेनर्स, आर्टिकल 25 इज फॉर ऑल पर्सन्स, याद रख लो। एक्सक्लूसिव कौन से हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन, 15, 16, 19, 29, 30, इसको याद रख लो। इसके अलावा सारे चीजें जो है these are available for foreigners as well. नेक्स्ट आर्टिकल 26 के ऊपर आते हैं, तो आर्टिकल 25 क्या दिया, दिस गिव्स यू इंडिविजुअल फ्रीडम, कि एक इंडिविजुअल को जो है फ्रीडम दिया जाता है। आर्टिकल 26 गिव्स फॉर अ रिलीजन एज अ होल फ्रीडम ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ठीक है। तो फिर इसमें क्या क्या आता है कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, कि भाई लेट्स से यू आर ऑल मुस्लिम्स, ऑल हिंदूज, राइट, तो उसका एक कंडीशन भी है, हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि आपके डिस्टिंक्ट सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड बिलीव्स हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। यू हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी आपके कॉमन फॉलोअर्स हैं, आपके जो भी फेथ के हैं, दे आर हैविंग अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव अ प्रॉपर डिस्टिंक्टिव नेम, कि यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ कि हिंदूज ही हैं, मुस्लिम्स ही, यू शुड हैव अ डिस्टिंक्टिव नेम। फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण मिशन वाले हो गए, आनंद मार्ग वाले हो गए, लिंगायत्स हो गए कर्नाटका के, शिया मुस्लिम्स, तो दीज आर कॉल्ड रिलीजियस डिनोमिनेशंस, राइट। सो दीज रिलीजियस डिनोमिनेशंस को आर्टिकल 26 के अंदर कुछ राइट्स दिए गए हैं। व्हाट आर दोज राइट्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स आप खोल सकते हो, वो मठास, धर्मशाला, स्कूल्स वगैरह, मतलब these religious denominations can open these and manage their affairs on their own, right. नेक्स्ट सॉरी मैनेज देयर इट्स ओन अफेयर्स ऑफ मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये सेकंड क्लॉज में आता है, राइट। तो फिर ऑटोनॉमी इन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राइट। तो फिर आपके जो भी ये इंस्टीट्यूशंस आप खोलते हो, टेम्पल्स हो गए, मठ्स हो गए वगैरह, तो फिर इसके अंदर जो भी आपको अफेयर्स आपको मैनेज करना है, यू कैन मैनेज इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट एक बार आप ये चीज बना लिए, एक इंस्टीट्यूशन बना लिया, तो फिर दैट कैन ओन और अक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या आ जाता है कि लैंड हो गए, सिक्योरिटीज, इवन ज्वेलरीज, राइट। तो ये सब चीजें आप अक्वायर कर सकते हो, तो फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज, है ना। बट नेक्स्ट एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, राइट। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आप जो है उसको करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वक्फ वाले ये देख लो कि जो भी मुस्लिम रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, इट इज मैनेज बाय वक्फ बोर्ड, राइट। तो फिर दैट आल्सो कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर 26 वाला आर्टिकल इटसेल्फ, राइट। सो इट इज बेसिकली कि डिफरेंस है कि 25 में आपको इंडिविजुअल फ्रीडम दी गई, 26 में आप डिनोमिनेशन बना के, अपने रिलीजियस डिनोमिनेशन बना के, यू कैन मैनेज ऑल दिस अफेयर्स ऑन योर ओन, ठीक है। उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, कि भाई पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है। 25 में क्या था, एक और वेरी बिग एक्सेप्शन दिया गया था कि भाई स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज, आपका मतलब टू थ्रो ओपन ऑल द हिंदू टेम्पल्स टू एवरीवन, है ना, पब्लिक कैरेक्टर वाले हिंदू टेम्पल्स टू एवरीवन। तो फिर वो वाला कैरेक्टर, मतलब वो वाला क्लॉज इसमें नहीं है, बिकॉज 25 क्लॉज 2 जो है
यहाँ ऑटोमेटिकली इसी को भी ही एक्सटेंड हो जाता है, राइट। तो क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स को वो गवर्न करता है तो फिर होल ग्रुप को तो ऑटोमेटिकली वो गवर्न करेगा ही, राइट। तो फिर 26 में एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, मगर 25 क्लॉज 2 जो है 26 तक भी एक्सटेंड होता है। ओके, केस लॉस इसके देख लो कि कुछ कुछ शिरोर मठ के केस के ऊपर ही है कि रिलीजियस एंड सेक्युलर कैरेक्टर्स के ऊपर जो है देयर इज डिस्टिंक्शन, राइट। तो फिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट जो शिरोर मठ केस में हुआ था दैट इज एप्लीकेबल फॉर आर्टिकल 26 एज वेल। नेक्स्ट एक और रिसेंट वाले कुछ जजमेंट्स देख लो कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट ऑड आवर्स कैन बी कर्टेल, राइट। पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ के ऊपर you can be curtailed, you cannot be using loudspeakers beyond a particular time. Next, Auroville is not a religious denomination. आपकी पौंडीचेरी में जो भी है तो फिर that particular thing is not a religious denomination. It has been told in 1983 वाला एक केस, ठीक है। तो religious denomination में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लो, ये वाले जो भी हमने पढ़े थे। तो यहाँ जो भी मैंने बताया कि आर्टिकल 25 इज इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 26 इज कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डिनोमिनेशन, राइट। तो आर्टिकल 27 के ऊपर आते हैं हम, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, राइट। तो स्टेट जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए कुछ टैक्स नहीं ये कर सकता, मतलब चार्ज नहीं कर सकता ऑन इट्स सिटीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceeds of which are specifically appropriated for promotion and maintenance of one particular religion. तो फिर इसमें आप ये क्या एस्टैब्लिश कर सकते हो कि स्टेट जो है सारे रिलीजन्स के लिए कॉमन चीज वो ड्रॉ कर सकता है सिटीजन्स के लिए, राइट। एज अ फॉर्म ऑफ फीस हो गया, राइट, या आपका मतलब जनरल टैक्स हो गया, ये चार्ज करके इट कैन बी अप्रोप्रिएटेड टू ऑल द रिलीजन्स मतलब इक्वली, मगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इट कैन नॉट बी टैक्सिंग द सिटीजन्स, राइट। जैसे कि अभी हज जाते हैं मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, राइट, तो उसके लिए सब्सिडी निकलती है। तो आप नहीं ये नहीं देखते हो कि कुछ हज टैक्स किसी के ऊपर लगा रहे हैं कि सबसे कलेक्ट कर लिए ऑल द सिटीजन से और मुस्लिम्स को वो दे दिए, राइट, फॉर ये दिस थिंग। सिमिलरली अमरनाथ यात्रा के लिए कुछ टैक्स नहीं है, मगर जो भी जनरल टैक्स कलेक्ट होता है तो फिर उसके थ्रू जो है यू कैन व्हाट यू से फंड ऑल दीज पिलग्रिमेज एंड अदर एक्टिविटीज, वो जो है फंड कर सकती है स्टेट, राइट। वही नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैनॉट ईयर मार्क अ टैक्स फॉर बिल्डिंग और रनिंग वन रिलीजन टेम्पल चर्च, या उसके हो गया कॉमनली जो है वो किया जा सकता है, राइट। फीसेस जो भी मतलब जैसे कि पुलिस हो गया, ऑडिटिंग के लिए हो गया, पिलग्रिमेज के लिए एमिनिटीज हो गया, तो इसके लिए फीस चार्ज कर सकते हैं। चार्ज मतलब टैक्स जो है यू कैन नॉट चार्ज इट। जनरल टैक्सेस दैट आर स्पेंट ऑन ऑल रिलीजन्स फॉर ऑल सेक्युलर वेलफेयर, फॉर अ सेक्युलर वेलफेयर, दैट कैन बी चार्ज। नेक्स्ट, टैक्स मतलब ये कंपलसरी एग्जैक्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक पर्पसेस नहीं है, ठीक है। तो फिर वो जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है तो फिर दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड। ये केस याद रख लो, हज सब्सिडी इज नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 27, दैट्स व्हाई आई सोल्ड कि सब्सिडी केम फ्रॉम जनरल रेवेन्यूज, ठीक है। तो फिर आपको कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं चार्ज कर रहे, जैसे स्वच्छ भारत टैक्स हो गया, सेस हो गया, तो फिर सेस या टैक्स कुछ भी आप चार्ज नहीं कर सकते पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, है। कुछ कुछ चीजें आर्टिकल 27 के आप इसमें याद रख लो, इट कॉम्प्लीमेंट्स आर्टिकल 25, 26 एंड आर्टिकल 28 जो हम आपने देखने वाले हैं। इट डज नॉट प्रिवेंट स्टेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिर टैक्स आप नहीं कलेक्ट कर सकते मगर ओन कर सकते हो, कुछ टेम्पल्स जो हैं दे आर डायरेक्टली अंडर स्टेट रेगुलेशन, राइट। तो फिर इट डज नॉट प्रिवेंट दैट। Article 27 stops the state from forcing taxpayers to bankroll the propagation of a single religion. Yet it lets regulate regulatory fees जो है, मतलब यही है, रिपीटेशन ही है। तो फिर बजट ग्रांट अलोकेट्स इक्वल अमाउंट फॉर कुंभ मेला, राइट, हज एम्बार्कमेंट, बुद्धा पूर्णिमा, सबके लिए जो है सेम ही हम बजट ये देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हम इस चीज़ों में। तो फिर ये सब जो है दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ आर्टिकल 27 इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट आर्टिकल 28 के ऊपर आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो आप एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रहे हो तो फिर यू हैव फ्रीडम की कोई और आके आपके ऊपर रिलीजियस इंपोजिशन नहीं कर सकता, राइट। 25 में जो है यू हैव अ फ्रीडम की आप जाके प्रोपोगेट कर सकते हो। आर्टिकल 28 में जो है स्पेशली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई दूसरा आके आपको उसका रिलीजन जो है इम्पोज नहीं कर सकता, राइट। तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इट इज होली मेंटेन्ड ऑफ स्टेट्स फंड, राइट, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, स्टेट ऑन स्कूल्स रहते हैं, तो वो फर्स्ट टाइप हो गया आपका।
एडमिनिस्ट्रेट बाय स्टेट बट सेटअप अंडर अ रिलीजियस एंडोमेंट, राइट। बहुत सारे आपके कॉन्वेंट्स हो गए, राइट, मदरसास हो गए, टेम्पल के जो भी मठ हैं साउथ में, तो फिर उनके भी स्कूल्स होते हैं। दीज आर एस्टेब्लिश बाय देम, मगर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जो है कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जो कि एडेड बोल सकते हो आप, राइट। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट बट देर इज नो एड, ठीक है, बस आपको मतलब रिकॉग्निशन दैट इज लाइसेंस दे दिया गया स्कूल को, मगर इट इज नॉट रिसीविंग एनी एड, गवर्नमेंट से जो है कुछ भी फंडिंग नहीं आ रही। ये थर्ड टाइप हो गया आपका। फोर्थ टाइप मीन्स कि रिसीविंग फाइनेंशियल एड एज वेल, रिकॉग्नाइज भी कर लिया और फाइनेंशियल की एड भी मिल रहा है, राइट। तो फिर ये चार टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है क्लासिफाइड है। तो फिर इसमें क्या क्या है, होली मेंटेन्ड ऑफ स्टेट फंड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप कुछ कर ही नहीं सकते, राइट, इट इज टोटली नॉट परमिटेड। नेक्स्ट, अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट है, इट इज परमिसेबल, बट अगेन कंपल्सरी नहीं है, वो ऑप्शनल होना चाहिए ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट हो गए या विदाउट रिसीविंग एड हो गया, विदाउट रिसीविंग एड हो गया, इट इज परमिटेड ओनली ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मदरसा वगैरह में जा रहे हो तो वो तो फिर देख रहे हो, तो फिर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे कर सकते हो, राइट। आप जनरल जो भी सिलेबस है, सीबीएसई का हो गया, स्टेट सिलेबस हो गया, वो पढ़ा सकते हो। उसके अलावा जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप करवा रहे हो, तो फिर इट कैन नॉट बी कंपल्सरी, राइट। अगर कोई हिंदू जाके मदरसा में ज्वाइन हो रहा है, तो फिर वो जनरल जो भी एजुकेशन वाला मतलब सिलेबस वाला पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई वाला, स्टेट सिलेबस वाला, वो पढ़ सकता है। यू कैन नॉट इम्पोज की जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो भी वो बच्चा जो भी एडमिशन ले रहा है, ही ऑल्सो लर्न्स दोज थिंग्स, ठीक है। तो एक वो चीज आप ये क्लियर कर लो। नेक्स्ट, तो फिर इसके क्लॉजेस जो भी हैं, वॉट एवर वी डिस्कस हियर दैट इटसेल्फ इज मेंशन्ड, ठीक है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एट ऑल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट फंड्स, राइट। फुल्ली गवर्नमेंट रन स्कूल्स हो गए, आपके सैनिक स्कूल्स हो गए, राइट, आर्मी स्कूल वाले, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, तो फिर उसके अंदर आप नहीं कर सकते। बैन डज नॉट अप्लाई वेयर इंस्टीट्यूशन दो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ ट्रस्ट और एंडोमेंट ऑफ रिलीजियस टीचिंग, राइट। संस्कृत कॉलेज हो गया आपका अंडर हिंदू ट्रस्ट, है ना, दूसरे मदरसे वगैरह। तो फिर थर्ड थिंग इज recognized by state or receiving state aid, attendance at religious instruction or worship is strictly voluntary, that means अगर आपकी एडेड स्कूल है, अनएडेड स्कूल है, फिर भी तब जो है इट इज वॉलेंटरीली बेसिस पे आप अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो, ठीक है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है कि स्ट्रक्चर टीचिंग ऑफ डॉक्ट्रिन्स, राइट, अ सेक्युलर स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स इज नॉट बैड, मींस कि भाई सारे रिलीजन्स के ऊपर आपने मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में देखा होगा कि सारे रिलीजन्स के फेस्टिवल्स के ऊपर एक चैप्टर है, राइट। तो फिर सारे रिलीजन्स के ऊपर जो है यू कैन लर्न इट, मगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जब माना जाता है कि भाई बस आप एक ही रिलीजन का कुछ जो है डॉक्ट्रिन आप बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, राइट। मॉर्निंग प्रेयर और हिम इन अ गवर्नमेंट स्कूल इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, सॉरी इंस्ट्रक्शन ओनली इफ इट इज डॉक्ट्रिनल एंड कंपल्सरी, है ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे साउथ वाले स्कूल्स में सुबह का प्रेयर जो है गायत्री मंत्र हुआ करता था, राइट। तो फिर इट वाज वॉलंटरी, है ना, इवन इफ इट इज अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो फिर इट वाज वॉलंटरी। तो फिर दैट इज व्हाट हियर इट इज सेइंग कि मॉर्निंग प्रेयर इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन इट हैज बीन मेड वॉलंटरीली, और अगर जब आप इसको इम्पोज कर दो कि सब बच्चों को गाना ही पड़ेगा, तो फिर दैट कम्स अंडर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और उसको आप जो है यू कैन बार इट। नेक्स्ट, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एडेड बाय स्टेट मस्ट आल्सो कीप इंस्ट्रक्शन वॉलंटरी, ठीक है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का स्टेटस आप देखोगे अभी आर्टिकल 29-30 में, तो इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट, उस टाइम पे भी जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यू हैव टू कीप वॉलंटरीली। ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कि बस रिकॉग्निशन ले लिया आपने, कुछ एड नहीं मिल रहा आपको, कुछ ये नहीं, फॉर एग्जांपल मदरसा से इंडिपेंडेंट, टोटल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब जो है आप कंपलसरी इंपोजिशन आप कर सकते हो उस चीज पे, मतलब उस इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट, अगेन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। एंड राइट कैन बी enforced by writ if a pupil is forced to attend religious class in this thing. Obviously 32 article is present for all the fundamental rights, right, to ensure that all fundamental rights are given to citizens. तो फिर अगर आप if your right is infringed, आप जो है writ आप लगा सकते हो अंडर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मूविंग अहेड, अभी हम पहुंच गए हैं कि भाई राइट टू, moving ahead, we are moving to the last segment of fundamental rights, that is right to protection of linguistic and religious minorities के ऊपर, right? तो आर्टिकल 29 क्या डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। एक चीज आप ध्यान कर रख लो
कि 29 जो है इट इज फॉर जनरल माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज कुछ भी हो सकते हैं। 30 में स्पेसिफिक माइनॉरिटीज आर मेंशन, दैट इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है ठीक ठाक हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 29, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है, ये तीन यह चीज है कि भाई लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। ठीक है, तो उसमें क्या है, ग्रुप और कलेक्टिव राइट है ये। ठीक है, इंडिविजुअल्स को नहीं, जैसे आर्टिकल 25 में दिस इज फॉर अ ग्रुप टू कीप योर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कस्टम्स, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, उसको आप प्रिजर्व कर सकते हो। दिस अप्लाइज टू लिंग्विस्ट, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मराठी पीपल लिविंग इन कर्नाटका, दे बिकम ऑटोमेटिकली माइनॉरिटीज इन दैट स्टेट, राइट। तो फिर उनको भी जो है आर्टिकल 29 इज गिवन टू देम। Next, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid on the grounds of only religion, race, caste, language or any of them, right? तो ये तो ऑलमोस्ट कौन सा आर्टिकल जैसे हो गया आपका आर्टिकल 15, राइट। तो इसका जो है रीइटरेशन है, इंडिविजुअल राइट प्रोटेक्ट्स every citizens from discrimination in state or state aided schools and colleges. ग्राउंड्स बार्ड आर की रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज हो गया, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर यहाँ पे देर इज डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल, मगर आर्टिकल 15 के अंदर जो है इट वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, राइट। अगेन आर्टिकल 15 भी बस सिटीजन्स के लिए था और आर्टिकल 29 भी जो है इट इज ओनली फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ जजमेंट्स इंपॉर्टेंट इसके याद रख लो कि आरटीआई एक्ट पार्शियली इनएप्लीकेबल टू अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइजिंग कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन, कि आरटीआई एक्ट मतलब आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, तो फिर ये सारे रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जो है इट फेल्स टू कंप्लीटली बी अप्लाइड। नेक्स्ट, सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स कैन इंक्लूड मेजॉरिटी सेक्शंस ऑल्सो, जैसे मैंने बताया कि मराठी पीपल लिविंग इन कर्नाटका दे बिकम ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी इन दैट स्टेट, राइट। क्योंकि हम जो है क्या क्या चीज़ों पे आप ये कर सकते हो, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर अपने हिसाब से यू कैन बी माइनॉरिटी इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफी। नेक्स्ट, एक चीज आप याद रख लो कि सिटीजन, सेक्शंस ऑफ सिटीजन फ्रेज इज डिलिबरेटली ब्रॉड, राइट। तो फिर उसमें जो है बंगालीज इन दिल्ली, राइट, ये लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज हो गए दिल्ली में, और गुजरातीज इन गुजरात, मेजॉरिटी स्टेट वाइड बट कल्चरल सेक्शन में अगर गुजरातीज का कुछ सेक्ट है दूसरा का, दोज हु आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, दे कैन बी रिलीजियस माइनॉरिटी इन गुजरात ऑल्सो, राइट। तो फिर गुजरातीज कैन बी माइनॉरिटीज इन गुजरात ऑल्सो, तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। माइनॉरिटी वर्ड इज मेंशन्ड मगर इट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। ठीक है, तो फिर इट डज नॉट मैटर, मगर फोकस इज ऑन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो फिर ये तीन चीजों के ऊपर माइनॉरिटी इज अप्लीकेबल ओनली अंडर आर्टिकल 29। ठीक है, तो आर्टिकल 29 वर्सेस 30 देखने से पहले आर्टिकल 30 ही देख लेते हैं। तो इट इज राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बस दो टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज हैं, दैट इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एंड इट इज स्पेसिफिकली एक्सटेंडिंग टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो फिर इट अप्लाइज टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, दोनों कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, या तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकते हो या तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकते हो, एंड डिसाइडेड स्टेट वाइज, आपके जो भी माइनॉरिटीज लिस्ट है तो फिर इट इज स्टेट वाइज, बिकॉज हिंदूज और ऑल्सो मतलब माइनॉरिटीज इन मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो फिर उनके हिसाब से लिस्ट अलग अलग निकलती है कि भाई किस स्टेट में विच रीजन विच लैंग्वेज इज अ माइनॉरिटी। इट कवर स्टार्टिंग द इंस्टीट्यूशन, डिसाइडिंग द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, मतलब ए टू जेड जो भी स्टार्ट से एंड जो भी होता है, तो सारे राइट्स जो है इसमें दे आर कवर्ड। इफ गवर्नमेंट कंपल्सरीली अक्वायर्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो आर्टिकल 30 के अंदर है, तो फिर इट कंपेंसेशन मस्ट बी सच दैट द राइट इज नॉट डायल्यूटेड, कि जो भी एजुकेशन के लिए एस्टैब्लिश किया गया था ना वो जो भी है, अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली वो जगह या बिल्डिंग अक्वायर कर ली तो फिर उसका पर्पस जो है चेंज नहीं होना चाहिए, और एल्स इफ इट हैज टू बी कंपेंसेटेड कि भाई वो कहीं और जाके दे कैन बी व्हाट यू से सेम ये जो भी इंस्ट्रक्शन, वट एवर द पर्पस फॉर विच द इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश, दैट इज नॉट डायल्यूटेड। ठीक है, the state shall not discriminate in granting aid to the granting aid on the ground of management is done by minority, right। तो जब भी आप गवर्नमेंट एड जाता है ना स्कूल्स के वगैरह के लिए, तो फिर इस बेसिस पे नहीं जा सकता कि भाई ये मेजॉरिटी स्कूल है, ये माइनॉरिटी स्कूल है, तो फिर इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन
दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ कुछ रेगुलेशंस जो है परमिसेबल है इवन इन आर्टिकल 30 वाले एस्टैब्लिश स्कूल्स में, जैसे कि टीचर क्वालिफिकेशन डिसाइड करना, फायर हैजार्ड, ठीक है, मिनिमम डेज एंटी रैगिंग लॉ वगैरह सब कुछ, ये सब मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के लिए दैट इज कंपलसरी, तो फिर दैट रेगुलेशन इज गिवन टू द स्टेट। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस। परमिसेबल इंटरफेरेंस में क्या है कि फोर्सिंग अ माइनॉरिटी बॉडी टू चेंज इट्स रिलीजियस एथॉस मर्ज विद अनदर बोर्ड और सीट मेजॉरिटी मैनेजमेंट, राइट। तो फिर ये कुछ कुछ मतलब टू एंश्योर दैट देयर इज नो मिसमैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो फिर ये सब चीजें जो है ये स्टेट कैन इंटरवीन इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ब्रॉडली आपके 26 में जो भी हमने देखा था कि भाई एडेड रिकॉग्नाइज्ड है, अनएडेड बट रिकॉग्नाइज्ड है, अनएडेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, राइट। तो फिर ये थर्ड टाइप में जो है कंप्लीट जो है स्टेट का इंटरफेरेंस, जो भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली ओपन, राइट। जैसे कि एक इनफॉर्मल मदरसा, दिस इट कम्स अंडर अनएडेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। वर्चुअली फ्री मम एनी ऑफ द स्टेट नॉर्म्स, राइट। ये तो मतलब पब्लिक ऑर्डर हेल्थ जो भी 25 के अंदर हमने रेस्ट्रिक्शंस देखी वो तो सबको अप्लीकेबल होती ही हैं, उसके अलावा देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, राइट। एडेड, सॉरी अनएडेड बट रिकॉग्नाइज, अगर आपने स्कूल के रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड है तो फिर ये वाले सारे जो भी हमने देखा परमिसेबल रेगुलेशंस जो हैं दे आर परमिसेबल। एडेड है अगर गवर्नमेंट के पास तो फिर बहुत सारे थोड़े ज्यादा रेगुलेशंस आ जाते हैं, राइट। कि जैसे कि अब 50% ऑफ द कम्युनिटी कैप के ऊपर नहीं जा सकता, जैसे कि सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया, बैंगलोर के सेंट जॉन्स कॉलेज हो गया, तो फिर 50% ऑफ द दिस थिंग सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर क्रिश्चियंस, राइट। तो फिर उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, मगर ये कैप जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर परसेंटेज। Next, let's go with what are the religious pronouncement associated with Article 30, right? तो minority right is not absolute. अभी last 2-3 साल पहले again Supreme Court has reiterated the same कि Article 30 is not an absolute right, right? RT Act does not bind अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स वुड एरोड आर्टिकल 3, मतलब आरटी एक्ट के ऊपर जो भी है, मतलब राइट टू एजुकेशन जो है, यू कैन नॉट इम्पोज कंपल्सरीली ऑन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दैट वुड एरोड आर्टिकल 30 वाली ऑटोनॉमी दैट हैज बीन सेड इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। तो फिर ये बाकी वाले केसेस जो है यू कैन जस्ट पॉज एंड सी, दिस इज मस्ट मोर और लेस द रीइटरेशन ऑफ व्हाट वी हैव सेड इन द अर्लियर सेक्शंस, ऑलराइट। मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 31। आर्टिकल 13 जो है, 31 जो है अभी रिपील किया गया था, दैट इज राइट टू फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है, which was existing from your independence till 1978, मगर 44th amendment of 1978 it revoked this particular right to property वाला act. What did it initially give? Article 31 gave fundamental right, that is property could not be taken only for public purpose and without could be taken only for public purpose and that too with ड्यू कंपेंसेशन गिवन टू देम, राइट। तो फिर ये एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट था। तो आर्टिकल 31 वाज रिपील्ड in 1978 under 44th amendment and right to property was shifted to article 300A, right। तो फिर still now right to property is a constitutional right मगर it is not a fundamental right। अब तक तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर इफ इट इज इनफ्रिंज्ड यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, वहां से केस हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसे ले जा सकते हो, मगर डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट इट डज नॉट गारंटी यू दिस फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो उसके अलावा और एक मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन है कि 31A B C जो है देयर आर फर्दर एडिशंस 1978 के बाद, सॉरी 1951 में एक एडिशन हुआ, 1971 में हुआ, राइट। तो ऑल दीज एडिशंस दीज डू नॉट कम अंडर योर फंडामेंटल राइट्स इवन दो दे आर प्लेस्ड, मतलब ये नंबर्स जो भी हमने बताया था कि आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट। मगर इवन दो दीज आर्टिकल्स आर कमिंग अंडर आपका फंडामेंटल राइट्स वाले नंबर्स, मगर ये आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में काउंट नहीं किए जाते हैं, राइट। तो यू कैन इग्नोर दीज आर्टिकल्स ऑल नाउ। आर्टिकल 32, राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब ये हमने अब तक जो भी फंडामेंटल राइट्स देखे हैं तो फिर इफ दे आर इनफ्रिंज तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दैट राइट इज गिवन अंडर आर्टिकल 32, राइट। तो फिर अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होना ही एकदम बेकार था, दैट इज नल एंड वॉइड हो जाते थे फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ, राइट। सो आर्टिकल 32 वी हैव डिटेल्डली डिस्कस्ड
in another video where we are discussing all the 50 important topics which are necessary for the upcoming prelims. The अभी ऊपर आप आई वाला बटन यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर वहाँ पे जो है डायरेक्टली विल बी रिडायरेक्टेड टू दैट वीडियो, है ना। वहाँ पे आप जाके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ लो और उसके साथ साथ जो है व्रिट्स जो भी एसोसिएटेड हैं इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसको वन गो में जो है वहाँ पे आप उस वीडियो में आप देख सकते हो, राइट। तो वी विल बी स्किपिंग आर्टिकल 32 कंप्लीटली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दैट सेक्शन, तो वहाँ पे आप देख लो। तो आर्टिकल 33 पे डायरेक्टली जाते हैं कि भाई पार्लियामेंट्स पावर टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है। आर्म फोर्सेस एंड अलाइड सर्विसेज वालों के लोगों के लिए ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल, तो पार्लियामेंट जो है दे कैन मेंड दीज फंडामेंटल राइट्स फॉर एप्लीकेशन ऑन दीज पीपल, ठीक है। तो किन किन के ऊपर अप्लाई है कि भाई मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों के ऊपर अप्लाइड है। पैरामिलिट्री फोर्सेस डीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी आपके सीएपीएफ वाले सारे जो भी हैं तो फिर इनके ऊपर अप्लीकेबल है। पुलिस फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंट्स आपकी आईबी हो गया सीबीआई वगैरह एंड एनी अदर फोर्स चार्ज्ड विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो इनके ऊपर कुछ कुछ इम्पोजिशन हम स्टेट लगा सकता है, स्पेसिफिकली पार्लियामेंट लगा सकता है। इट में ऑल्सो एक्सटेंड टू नॉन कॉम्बैटेंट स्टाफ की भाई आपके कंटोनमेंट के कुक्स हो गए बारबर्स क्लर्क्स वगैरह, तो फिर दे दोज ऑल्सो कैन बी एक्सटेंड, दीज इम्पोजिशंस कैन एक्सटेंड टू दोज पीपल एज वेल। तो फिर इसके फीचर क्या है कि भाई पार्लियामेंट में रेस्ट्रिक्ट और इवन अब्रोगेट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज इट अफेक्ट्स डिसिप्लिन हो गया, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी हो गया या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इन तीन बेसिस के ऊपर कि डिसिप्लिन, पब्लिक डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के ऊपर स्टेट कैन इम्पोज restriction on fundamental rights on these people, of these people, right? So only parliament can impose it, right? And article 33, any law made under article 33 parliament अगर बनाता है तो it cannot be struck down merely because it violates fundamental rights, ठीक है। तो आर्मी वाले पीपल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज हो गया, क्योंकि आर्टिकल 33 इज सेफ गार्डिंग पार्लियामेंट फ्रॉम डूइंग सो। नेक्स्ट, Many of these acts exclude or limit high court, supreme court writs against court martials verdict वगैरह, ठीक है। अगर आपको जैसे कि आपके आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हो गया वगैरह, तो फिर many of these article what I say acts which have been made under article 33 by parliament, they also restrict आर्मी वाले पीपल के कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपके नॉर्मल वाले केसेस भी हो गए, सो हाई कोर्ट वाले केसेस, सॉरी सुप्रीम नॉर्मल वाले केसेस के लिए यू हैव टू गो टू आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल सेपरेटली एस्टैब्लिश कर दिए गए, so that you can move there and not to Supreme Court or High Court, ठीक है। Next, let's move to Article 34, which deals with martial law and fundamental rights. So when martial law is declared in any part of India, Parliament, only Parliament may restrict or suspend fundamental rights in that area and pass indemnity act that validates or shields any act, सेंटेंस और फॉरफीचर ऑर्डर्ड बाय मिलिट्री अथॉरिटीज वाइल मार्शल लॉ वाज इन फोर्स, ठीक है। बेसिकली मार्शल लॉ जब भी डिक्लेयर होता है एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो फिर पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और जो भी एक्ट पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, कोई भी बनाता है, तो फिर उस एक्ट को जो है इट वैलिडेट्स और शील्ड्स इट कि भाई कुछ मतलब आप उसके अगेंस्ट जो है ये नहीं जा सकते, कोर्ट पे नहीं ले जा सकते। दैट कैन बी एडेड बाई आर्टिकल 34, राइट। तो मार्शल लॉ जो है इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मार्शल लॉ अभी इंडिया में कभी तक इंडिपेंडेंस से आज तक इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एट ऑल, ठीक है। तो वो चीज़ आप ये याद रख लो कि इट इज़ नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मीन्स टेम्पररीली मिलिट्री लोर व्हेन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर ब्रेक्स डाउन, ठीक है। ब्रॉड डेफिनेशन यही है, मगर इट हैज़ नॉट कंप्लीटली बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। यूजुअली जो है वॉर हो गया, इन्वेजन, आर्म्ड रेबिलियन, लार्ज स्केल रेयॉट्स वगैरह के टाइम पे मार्शल लॉ लगा सकते हैं, मगर आज तक हमने अभी लगाया नहीं है, right? Ordinary courts may be suspended or replaced by military tribunals when martial law is in place. Military can impose curfews, censorship, seize properties and etc. when martial law is in place, ठीक है। Next, Supreme Court has also said कि proclamation of fund martial law does not by itself suspend habeas corpus jurisdiction, ठीक है। habeas corpus जो आर्टिकल 31 के फर्स्ट में आता है writ, तो फिर मार्शल लॉ लगाने से कंप्लीट बैन ऑफ हेबियस कॉर्पस हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी इंडेमनिफाइड, मतलब क्या शील्ड किया जा सकता है। एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एनी पर्सन्स डन इन गुड फेथ और रिस्टोर ऑर्डर और सेंटेंस और फॉरफीचर्स ऑर्डर्ड बाय मिलिट्री कोर्ट्स, राइट। तो जब भी मार्शल लॉ लगता है तो फिर आर्मी पीपल हो गए, वो पर्टिकुलर रेगुलेशंस निकाल देते हैं या डायरेक्टिव्स निकाल देते हैं, तो दोज आर व्हाट यू से prevented from challenge to be challenged in court by article 33.
तो इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि मार्शल लॉ जब भी इम्प्लॉय होता है, आर्टिकल 352 विल बी सीइंग नेशनल इमरजेंसी आगे टाइम पे, तो जब भी मार्शल लॉ इम्प्लॉय होता है तो फिर ओनली फंडामेंटल राइट्स आर एक्सेप्ट मतलब अफेक्टेड, मगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 359 के अंदर अफेक्ट हो जाते हैं। ऑल्सो सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स, ये सब भी जो है अफेक्ट हो जाते हैं, मगर मार्शल लॉ में इट इज ओनली फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ इज ऑलवेज लोकलाइज कि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए अप्लाई होता है। नेशनल इमरजेंसी होल कंट्री के लिए भी हो जाता है या एक पर्टिकुलर रीजन के लिए भी, दोनों हो सकता है, राइट। अथॉरिटी कौन होता है कि मिलिट्री होती है, टेम्परली रिप्लेसेस सिविलियन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अथॉरिटी रिप्लेस हो जाती है विथ मिलिट्री गवर्नेंस, मगर व्हेन इमरजेंसी इज प्लेस सिविलियन गवर्नमेंट ही कंटिन्यू होते हैं, मगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसमें बस, राइट। मिलिट्री रोल इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राउंड्स क्या क्या है नेशनल मार्शल लॉ लाने के लिए? ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और एनी अदर रीजंस व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 33। नेशनल इमरजेंसी के लिए इट इज लिमिटेड टू वॉर, एक्सटर्नल रेग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन, राइट। ओनली 3 क्राइटेरियाज हैव बीन गिवन फॉर नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 34 है, प्रोसीजर नहीं गिवन है एंड इट इज नॉट डिफाइंड ऑल्सो व्हाट इज मार्शल लॉ। डिटेल प्रोसीजर जो है इसमें आर्टिकल 352 to 359 इट हैज बीन गिवन फॉर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन विल रिकॉल वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर आर्टिकल 34 कि इट इज अ सेफ्टी वॉल बेसिकली। वो जो भी मार्शल लॉ के ऊपर टाइम के ऊपर के टाइम में वॉट एवर द एक्ट्स आर डन बाय अथॉरिटीज उसको शील्ड करने के लिए। पावर ऑफ पार्ली इट इज पावर इज पार्लियामेंट्री एंड नॉट एग्जीक्यूटिव, राइट। तो फिर इसका मतलब ये कि पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है पास करना चाहिए एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली निकालता है उसके थ्रू जो है मार्शल लॉ अपने निकाल सकते। पावर हैज टू पास थ्रू पार्लियामेंट ओनली। कोर्ट स्टिल रिटेन अ नैरो विंडो फॉर रिव्यू, ठीक है। कंप्लीटली ये नहीं है इंडिपेंडेंट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कुछ विंडो जो है बचता ही है। मार्शल लॉ का एप्लीकेशन ही डायरेक्टली जो है वो आप निकाल सकते हो कि इफ इट वॉज लीगल और नॉट। नेक्स्ट, इंडिया हैज नेवर फॉर्मली इन्वोक्ड आर्टिकल 34 सिंस इंडिपेंडेंस, वो चीज आप याद रख लो। नेक्स्ट, आर्टिकल 35, द लास्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज पार्लियामेंट्स एक्सक्लूसिव पावर टू गिव इफेक्ट्स स्पेसिफिक गिव इफेक्ट टू स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट प्रोविजंस, ठीक है। तो फिर हमने कंटिन्यूसली वाइल डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स वी सॉ कि कुछ कुछ अथॉरिटी बस पार्लियामेंट को दी गई है। जैसे हमने अभी 34 को देखा कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग दैट, राइट। तो फिर वो सब चीज क्या क्या है कि आर्टिकल 16 में हमने देखा कि प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, वो एक चीज हो गया। आर्टिकल 32 एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस और रिट्स वगैरह, तो फिर वो एक पावर है। नेक्स्ट, आर्टिकल 33 कि मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा के लिए अगर आपको फंडामेंटल राइट्स हटाना है तो फिर वो बस पार्लियामेंट हटा सकती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ वगैरह लाना, दैट इज एक्सक्लूसिवली गिवन टू पार्लियामेंट, राइट। तो ये 4 फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाने हैं दैट ओनली पार्लियामेंट कैन मेक। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 23 दैट इज ट्रैफिक के ऊपर जो भी पनिशमेंट्स हैं दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑल दिस थिंग्स। तो आर्टिकल 35 बेसिकली पार्लियामेंट के लिए एक फंडामेंटल राइट है कि भाई बस ये सारे ये चीजों के लिए ओनली पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। सो दैट कंक्लूड्स ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर कुछ राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है मगर दे आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ फंडामेंटलिज्म, कि भाई आर्टिकल 12 से 35 के बाहर है। एंड दीज आर्टिकल्स वॉट एवर दीज फंडामेंटल सॉरी दीज राइट्स दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो डिफरेंस क्या है बेसिकली कि भाई आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते इफ योर राइट इज इन्फ्लुएंस। बेसिकली आपके पास आर्टिकल 32 नहीं है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, यू कैन नॉट इशू रिट्स। तो वो आर्टिकल्स क्या क्या हैं, व्हाट आर दोज राइट्स? आर्टिकल 265 एक है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। दैट मीन्स कि ओनली, मतलब ये आपने आर्टिकल 21 देखा था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप टैक्स जो है इंपोज कर सकते हैं। प्रिवेंट्स आर्बिट्री टैक्सेशन, राइट। ओनली थ्रू ड्यूली एनेक्टेड लेजिस्लेशन के थ्रू ही आप किसी के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। आर्टिकल 300A क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जो भी हमने आर्टिकल 44th अमेंडमेंट पढ़ा 1978 का, जो भी फंडामेंटल राइट था उसको हटा के यहाँ पे डाल दिया गया है 300A के लिए, राइट। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट अगेन नाउ, ठीक है। वो हमने वहां पे डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 301 क्या है?
ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है, हमने हमने ये चीज देखा था कि आर्टिकल 19 में यू हैव फ्रीडम टू डू योर ओन बिजनेस हो गया या प्रोफेशन वगैरह सब कुछ करना। यहाँ पे ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के ऊपर जो है यू हैव बीन गिवन फ्रीडम, मतलब आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वगैरह, सो दैट शैल बी फ्री। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर 302 to 305 के अंदर उसके रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो फिर मगर आर्टिकल 301 इज कंसिडर्ड एज अ राइट आउटसाइड फंडामेंटल राइट्स। एंड आर्टिकल 326, इसको तो नंबर के साथ आपको याद रखना है कि भाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो मतलब कुछ साल पहले जो है क्वेश्चन आ चुका है कि राइट टू वोट क्या चीज़ है, कि इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज इट अ लीगल राइट, इज इट अ फंडामेंटल राइट। तो फिर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते ही रहते हैं। मगर एक चीज़ आप याद रखो, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्लस इट इज ऑल्सो योर लीगल राइट, क्योंकि आरपीए के अंडर जो है यू आर परमिटेड, दैट इज यू हैव अ ऑब्लिगेशन टू गेट चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 326 एंड आरपीए के अंदर इट इज ऑल्सो अ लीगल राइट। तो बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट दोनों आता है राइट टू वोट आके। ठीक है, तो बेसिकली दीज राइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं काउंट होते। नो रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल फॉर दीज राइट्स। ठीक है, However, violation of these can be challenged in High Court under civil court suit लगा सकते हो, और अंदर 226 राइट writ jurisdiction जो है हाई कोर्ट्स का, इट इज वाइटर देन सुप्रीम कोर्ट। ये आपने writs का वाले सेक्शन में आप देख लो कि writs जो है हाई कोर्ट के writs jurisdiction इट गोज बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स। तो फिर उसके अंडर जो है आप इसके writs लगा सकते हो हाई कोर्ट्स में, मगर नॉट इन सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, so that's it guys. So we have concluded all the fundamental rights associated with part 3 of Indian Constitution, which will be very helpful if you are doing it properly for the upcoming prelims examinations, right? So if you are if this video was helpful for you, I would expect कि आप इसके अंदर comments section में you can show your whatever knowledge which you have gained, right? And please do follow all the videos which have been posted in this particular series, क्योंकि last moment में revision is very important, and if you are what is it misguided in your revision phase, तो it will be compromising your आने वाला attempt also. ठीक है, तो all the best guys, have a nice day.